So in that I started the tenses and I told you that tenses are the most important part. It is a fundamental, we can say. Once you are familiar with the tenses, then there is no need to solve any exercise, or we can solve any, means only vocabulary is needed for it. So guys, you also thinking that why the ma'am is saying same thing again and again. Actually, you know that my lectures are coming alternately. Okay, so sometimes you are forgetting whatever I am teaching to you. So for reminding you, I am always telling the things. So guys, today I am going to start your supplementary chapter. You know which book you are having? Footprints Without Feet is your supplementary textbook. And today I am going to start chapter 2. Its name is The Thief's Story. It is written by a great author, Ruskin Bond. And some are the, we can say, hard words I have written over here. So first is flattery. It means insincere praise. Modestly, in a humble way. Grunting, making low guttural sounds. Appearing, attractive. Online, showing no sign of worry and anxiety. So here, as the heading suggests, you also thinking, ma'am, what is the meaning of this story? You know, whenever we are listening this word, we are always thinking negatively. We are always taking this word negatively. Why? Because we are always consider that thief is not a person. He is always cheating us. That the concept we have fit in your mind. And that is why we are always judging others. But actually this is not true. Here also that thief, you can understand thief means thief. Okay, but they have also means they also have some emotions in them, and they are always expressing their emotions. It depends on the another person, that how the another person is treating with the thief. Then it depends on that particular person that he may be able to change the life of the thief. So the same story is written by Ruskin Bond. You know, Ruskin Bond is a very great author and he is always writing the stories which is having a unique moral. So these stories also have a unique moral. So before starting the lesson, this is supplementary chapter. And guys, one thing, yesterday on WhatsApp, one student of standard 10 has asked me some doubts that what have to write after completion of the lesson. So especially whenever you are going to write the supplementary part, you have to write all the text, that thinking about it, and whatever it is given in camp, you have to write. Because in 10th, board will ask you anything. So don't be particular in that what we have to write. Whatever is given behind the textbook, you have to note down all that question answers. Okay? So with this, I am starting this lesson. So here, the author has asked some questions to you. The question is that a young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. So does the boy betray his trust? Here one boy is given, his name is Anil, and he is the boy, he is supposing himself that I am a true owner or I will be a good person in life. So maybe he can successful in keeping his doubts. एक second, guys. Okay, sorry for the disturbance. You know that the voice is coming from the outside, so it is my duty to tell them. Okay, what I told you that here the author has asked some questions to us while starting the lesson. So what are these questions? First, who does I refer to in this story? Here the narrator is narrating the chapter. Okay, so who is this I used for? Second question is that what is he, a fairly successful hand at? It means what? It is actually a phrase. A fairly successful hand at. It means what? Third question is that what does he get from Anil in return for his work? Third question, what does he get from Anil that return for his work? Anil is a person, he is a must guy, you can say. He is always busy with his daily chores and always doing his work in a fantastic way. He hasn't any worry regarding his we can say future or any job work. Okay, means he is not taking any tension. So what the effect of Anil has made the impact over that I or he? Then we have to find it in this chapter that who is this I and he. Okay guys,
So I will read this chapter and parallel I will give the explanation of it. So let's see what is given here. I was still a kid when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Here, whenever this I is the person, that is secret. We have to find out it. Whenever this I, that is the thief. I is used for the thief here. Okay? That you get understand. You will get the first answer. You got the answer of the first question. I. Who is this I? So I is the thief. So the thief is saying that whenever he met Anil, he found that Anil was a very nice guy. He is a very easy fellow. What does it mean? He is very easy fellow. It means that to cheat Anil is very easy for that guy. Okay? So जब उसने ये क्या बोलते हैं, whenever he saw that Anil, उनको ऐसा लगा कि he is a very easy guy and we can easily cheat him. So that type of feeling he get in his mind. जब उसने वो जो thief है, उसने जब अनिल को देखा तो उसके माइंड में पहली बार ये सोच आई कि मैं इसको तो ये उल्लू बना लूँगा. समझ में आ रहा है? तो अभी क्या होता है देखो, जब वो उसकी ओर देखता है, so his observation is very nice. What he is thinking, वो ऐसे बोल रहा है यहाँ पे कि I was very successful hand, fairly successful hand. It means what? कि हाथ सफाई होते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज़ फटाक से चुरा लेते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है. तो वो बोल रहा है कि मैं तो इसमें माहिर हूँ. ये अनिल तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, because he is not a serious guy. He is a very open-minded person. So वो बोल रहा है देखो, उसने उसको ऑब्जर्वेशन कर लिया अनिल का. वो बोल रहा है कि he was 25. वो 25 years का लड़का है अनिल, and tall and lean fellow. Tall है, lean means very simple. लीन यहाँ पे अपने दूसरा में निकले नहीं, लीन इज मीन सिंपल फेलो, सिंपल गाय. फिर बाद में वो देखता है कि वो थिंक को मन में आता है कि मेरा जो पर्पस है, यू थिंक अबाउट व्हाट इज द पर्पस, कि इसको उल्लू बनाना मैं तुरंत उसको चीट कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बंदा है. इस तरह की सोच लेके वो अनिल के सामने उसको मिलता है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर ही मेट अनिल, वो कहाँ मिलता है अनिल को? So wrestler match, actually Anil was watching the wrestling match. तब वो जो thief होता है वो वहाँ पे जाता है और अनिल के पास वो बातें कर रहा है. अभी वो क्या बातें कर रहा है? Let's see. You look a bit of a wrestler yourself, I said, a little flattery in making friends. This is his regular style. This is the regular style of that particular thief. वो क्या बोल रहा है देखो? Hey you are looking at wrestling match. You are yourself means you means we can say तू खुद एक अच्छा रेसलर है. You can looking like that, you are looking like that. So तो अनिल ने बोला कि yes you are flattering means तू मेरी झूठी तारीफ कर रहा है. तो ठीक बोलता है नहीं really I am saying so, तू वैसा ही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि तू खुद एक रेसलिंग मैच देख रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि you are yourself is a we can say great wrestler. तो अनिल बोलता है okay no matter. फिर वो क्या बोला है देखो, so do you, he replied, which put me off for a moment because that time I was rather thin. फिर उसने अनिल ने रिप्लाई दिया कि वैसे तो तू भी रेसलर लग रहा है. तो वो जो ठीक होता है उसको खुद के ऊपर हंसी आती है क्योंकि वो इतना पतला होता है, कहाँ से रेसलर होगा. तुम लोगों ने देखा होगा रेसलर्स कैसे होते हैं, उनकी बॉडी बिल्डिंग वो सब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया होता है. उनको देख के ही हमारी आधी एनर्जी तो निकल जाती है, बराबर कि नहीं. सो अनिल भी उसको बोलता है कि तू भी तो एक रेसलर लग रहा है, बट थीप को खुद के ऊपर हंसी आती है. वो ऐसे खुद की बॉडी को देखता है कि अरे मैं तो पतला हूँ तो मैं रेसलर कहाँ से होऊंगा. फिर क्या होता है देखो, देन well I said modestly I do wrestle a bit. What's your name? फिर वो they were making the conversation with each other. वो एक दूसरे से conversation कर रहे थे. So whenever वो जो communication करते समय उनको उसने अनिल ने पूछा कि okay it's I said modestly means what you have written. Modestly means humble way, बहुत ही polite way से जैसे अपने casual talking करते हैं उस तरह से उसने लड़के को पूछा कि okay. और वो लड़के ने बोला कि मीन्स थीप ने बोला कि मैं कभी कभी रेसलिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ बट आई एम नॉट अ रेसलर बाय द वे. फिर अनिल ने पूछा कि ओके चलो तेरा नाम क्या है, बिकॉज यू नो गाइस
we are visiting any person in the first time, what we are asking? His or her name first. This is the introductory part of the communication. That before we are asking or we are talking the casual talk, at that time we first ask that person's name. So same way Anil has also asked the person that his name. तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अभी प्रॉब्लम इज हियर बिकॉज यू नो दैट थीप हैज नो वन नेम. ओके, थीप को कभी भी एक नाम होता नहीं है. चोर चोर ही होता है, उसका एक ही नाम है चोर, उसके अलावा दूसरा कोई नाम होता नहीं है. फिर क्या होता है देखो, उसने नाम बोला हरी सिंह. आई लाइक आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. दिस टाइम दैट आई मींस दैट थीप हैज टोल्ड हिज फेक नेम. He is himself saying like that. मेरा नाम हरी सिंह है और वो खुद बोल रहा है कि मैंने ये झूठ बोला. एंड एवरी मंथ आई यूज्ड टू चेंज माय नेम. और हर महीने में मेरा ये नाम मैं बदलता रहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे पुलिस से भी राहत मिलती है और मेरे जो पुराने ओनर्स होते हैं वो भी मुझे ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि एवरी टाइम मोस्ट प्रोबेबली इन एवरी मंथ आई एम चेंजिंग माई नेम. तो दिस टाइम ही सेड हिज नेम एज हरी सिंह. इस बार वो जो आए हैं, तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ऑथर ने कि हु इज आई. सो आई इज अ थीप एंड हिज नेम इज हरी सिंह. ये याद रहना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस बोलते हैं इसको. इसका कहीं पे भी नरेशन टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, बट तुमको ये खुद से लिखना होगा. तो अभी देखो उसने अपना नाम हरी सिंह बोला और वो खुद बोल रहा है कि आई लाइड इट, मैंने वो झूठ बोला, क्योंकि इन एवरी मंथ आई एम चेंजिंग माई नेम टू get rid from my old owners as well as from the police. तो ओके, उसने नाम तो बदल दिया. अभी क्या होता है आगे देखो. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. Then once they are familiar with each other's name, they started the other talking. What they were talking at that time, वो ऐसा बोल रहे थे कि अरे वो रेसलर को देखो, उसकी ऑयली बॉडी है, वो दूसरे रेसलर को किस तरह से. ग्रंटिंग इज द साउंड ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द बॉडी व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी हार्ड एक्टिविटी. तो उसके मुंह से एक आवाज आ रही थी, तो अनिल बोल रहा है, अनिल नहीं हरी सिंह बोल रहा है कि देखो वो दूसरे रेसलर को कैसे लिफ्टिंग थ्रोइंग ये ज़्यादा एक्शन डन बाय दैट रेसलर. वो रेसलर ने जो एक्शंस किए उसके बारे में वो बोल रहा है कि वो किस तरह से ग्रंटिंग लिफ्टिंग कर रहा है, एक दूसरे को वो पछाड़ रहे हैं. और फिर बाद में अनिल जो है वो वहाँ से निकल गया. अनिल वहाँ से निकल गया. फिर क्या हुआ देखो, हेलो अगेन ही सेड, क्योंकि उसको इसे चीट करना था, तो थीप ऑब्वियसली उसके पीछे जाएगा और वो गया भी. उसने फिर से बोला हेलो हाय गाय. फिर अनिल बोलता है ओके यस. फिर अनिल क्या बोल रहा है देखो, आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू. फिर उसने आगे बात बढ़ाई. उसने क्या बोला कि हेलो अगेन. ओके, अनिल ने बोला यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ. तो हरी सिंह ने बोला कि एक्चुअली पहले तो उसने उसकी इनोसेंट स्माइल दी जो सबको देता था. किसी किसी की स्माइल इतनी अच्छी होती है ना, वो कितना भी चीटर हो गया उसको देख के फिदा हो जाते हैं. तो जो हरी सिंह था उसकी ये मोस्ट वीकेंड से वो मास्टर था इसमें. उसकी स्माइल दी उसने मस्त, और जैसे ही उसने स्माइल दी सामने वाले कैसे लगा अरे चलो इसको तो कुछ देते ही काम. हरी सिंह ने उसको बोला कि मुझे आपके घर पे काम करना है. अनिल ने बोला यू कैन, तू कर सकता है, बट मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अनिल मैंने तुमको पहले बोला अनिल वॉज अ वेरी इजी गाय. वो एकदम बिंदास बंदा था, उसको कुछ पड़ी नहीं थी कल क्या होगा. ओके, तो वो बोल रहा है कि तुझे काम करना तो कर, पर मैं पैसे नहीं दूंगा. तो वो अभी क्या बोलता है आगे देखो, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक. अभी उनका कन्वर्सेशन चल रहा है देखो. अनिल ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा है, मैं उसको चीटिंग करने का सोच रहा था, मुझे ही उल्लू बना रहा है, तो अभी मैं करूँ क्या. उसको तो उसके घर जाना ही था, क्योंकि उसको देखना था कि अनिल कहाँ रहता है, क्या करता है, कितने पैसे वो कमाता है, ये सब उसको देखना था हरी सिंह. इसलिए हरी सिंह उसको बोल रहा है कि ओके कोई बात नहीं, बट उसके तू मुझे खिला तो सकता है ना, भले पैसे नहीं देगा, मैं काम कर दूंगा, 2 टाइम का खाना खिला देना. ओके, तो वो क्या पूछ रहा देखो, कैन यू फीड मी. फिर अनिल क्या पूछ रहा देखो, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइक
दूसरा झूठ। पहले झूठ उसने क्या बोला, उसका नाम। दूसरा झूठ उसने क्या बोला, मुझे खाना बनाना आता है। मीन्स एवरी टाइम ही वॉज लाइंग। दिस शोज दैट ही वॉज अ थिंग, इजंट इट गाइस? सो इससे पता चला कि वो चोर है, क्योंकि चोर कभी भी सच नहीं बोलता है। वो हमें बहुत ही इनोसेंट लगेगा, बहुत ही अच्छा है, और पर उसके मन में क्या चल रहा है दैट वी कांट गेस। तो ये वही हुआ, अनिल के साथ भी वही हुआ, उसने उसको वो पहचान नहीं पाया। फिर वो आगे क्या बोल रहा है देखो, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, बिकॉज अनिल हैज नो ऑप्शन। ओके, अभी तुमको पता है जो लोग वर्किंग पीपल होते हैं उनके घर पे ये जो है वो कंपलसरी चाहिए ही होते हैं। तो अनिल ने उसको बोला कि ओके, अगर तू खाना बना सकता है तो मैं तुझे खाना खिला सकता हूँ, तो बनाने का, काम भी करने का, सब कुछ संभाल लेना। सो ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, okay? But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he wouldn't help laughing. So finally, when Hari Singh reached to Anil's house, हरी सिंह जो है, मैं कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स हिंदी में बोलने की, तो भी कभी कभी इंग्लिश आ ही जाता है, बट यू आर नाउ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओके, यू आर हैबिचुअल विथ मी। तो क्या हुआ देखो, वो जो हरी सिंह था वो अनिल के घर पे गया, और अनिल के घर पे जाते ही उसने ही स्टार्टेड हिज वर्क, इस मीन्स उसने काम शुरू किया। उस दिन उसने जो खाना बनाया उसे ये पता चल गया कि अनिल ने वो खाना नहीं खाया, एक्चुअली अनिल हैज गिवन दैट फूड टू द स्ट्रे डॉग्स। सो सीइंग दिस दैट हरी सिंह थॉट दैट आई एम नॉट मीन्स आई एम अ बैड कुक, उसको ऐसा लगा कि मैं खाना अच्छा बनाता ही नहीं। ये अनिल को भी पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, बट अनिल ने कुछ बोला नहीं, और सिंपली उसने वो खाना खाया कि नहीं, उसने स्ट्रे डॉग्स को दे दिया। और ये जो लड़का है वो वहाँ से देख रहा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर बोर्ड में आएगा तो, कि वेयर वॉज अनिल स्टे, कहाँ पे वो रहता था, तो इसका आंसर आएगा ही वॉज लिव्ड ऑन द रूम, ही हैज, अनिल हैज अ रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। ये तुमको आना चाहिए, ये एमसीक्यू में भी आता है, तो इस तरह से तुमको तुम्हारे ऐसे माइक्रो रीडिंग होना चाहिए। वैसे तो मैं बोलती हूँ, पर इस तरह का रीडिंग तुमको रखना है। जब अनिल को वो खाना अच्छा नहीं लगा तो अनिल ने सिंपली ही वॉज गोइंग टू आस्क, पूछने ही जा रहा था। इतने में ये जो हरी सिंह था उसने क्या किया, ऐसे मोस्ट अपीलिंग स्माइल उसको दी, जो हर बार सबको देता था। तो वो स्माइल इतनी इनोसेंट थी कि उसको देख के हमारा जब टेंशन, जो भी वरीज है वो निकल जाए। तो अनिल ने लेट गो किया, जाने तो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, लेटर he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook, he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Now see, Anil decided that to teach the Hari Singh cooking as well as education. ओके, सो उसने डिसाइड किया कि अनिल जो है वो अपने ये हरी सिंह को कुकिंग भी सिखाएगा, और पैरेलली वो उसको लिखना और जो भी रीडिंग करना सिखाएगा। तो अभी देखो, जैसे ही अनिल ने उसको बोला, दिस इज अ गुड थिंग, नो, अच्छी बात थी कि नहीं कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा, खाना बनाना सिखाऊंगा, कौन करता है, तो एक दिन की पहचान थी उनकी। तो भी इससे ये प्रूव होता है कि अनिल इज अ गुड गाय। ओके, तो लड़का बोलता है ओके, और उसके मन में क्या आता है देखो, वो बोलता है कि अगर मुझे लिखना पढ़ना आ गया ना, फिर तो मेरा जो भी है मैं अचीव कर लूँगा। जैसे तुम लोग भी करते हो, क्या करते हो, गेस करो तो। जैसे हम लोग कुछ देते हैं, इसमें साइन करके लाना है, तुमको साइन करना पता होता है ना, यू आर मास्टर इन दैट। तुम लोग डुप्लीकेट साइन करके आते हो। वो जो हरी सिंह था वो तुम लोगों की तरह ही था। उसने क्या किया पता है, जैसे ही अनिल ने उसको ये सेंटेंस बोला कि मैं तुझे लिखना या पढ़ना सिखाने वाला हूँ, तो उसके माइंड में पहला थॉट ग्रेटफुलनेस आना चाहिए था कि आई एम सो ग्रेटफुल। वो बोल भी रहा है कि आई बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। अभी इसका हिंदी मुझे नहीं आएगा, ग्रेटफुल समझ सकते हो तुम लोग। फिर बाद में उसको ऐसा लगा, दूसरा चोर के विचार मन में चलते हैं, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे खाली तू लिखना पढ़ना सीखा, फिर देख मैं तुझे टोपी पहन के जाने वाला हूँ। ये सोच जो है वो उसके माइंड में है। अभी बेटा यहाँ पे actually this is a supplementary chapter, you know, and it is very lengthy. Actually supplementary is for you, not for me. Then also I am teaching.
सप्लीमेंट्री आपके लिए होता है, वोकेबुलरी इससे इंक्रीज होती है, उसमें अच्छी स्टोरीज दी होती है। ये टीचर का काम नहीं होता है, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट मेरे तरह ही है ना, इसलिए वो कराना पड़े। सो यहाँ पे अपने रुक जाते हैं। जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम लोग यही स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने तुमको थोड़ा ही पढ़ाया है, तब तक थोड़ा देखो वीडियो को, मजा आएगा तुम लोगों को। और उसके बाद जब चैप्टर कंटिन्यू होगा, कंप्लीट होगा, तो यू नो द रूल्स। क्या रूल है? एज सून एज द चैप्टर इज कंप्लीटेड यू हैव टू राइट द टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। ओके, टिल देन बाय गाइस।